Oh, last time I think we were talking about acceleration, right? Instantaneous acceleration तक पहुंचे ही नहीं थे ना अपन. हाँ, मैंने कोई क्वेश्चन दिया था, कोई नहीं कर पा रहा था, किसी ने कुछ नहीं सीखा. So once again, please remember that we have something called a position vector, right? Position vector is a vector drawn from the origin to the location of the particle, right? The position vector. फिर उसके बाद से मैंने आपके लिए डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. उसके बाद से अपन ने डिफाइन किया था डिस्टेंस. उसके बाद से अपन ने डिफाइन किया था एवरेज वेलोसिटी. उसके बाद से अपन ने डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. So this is equal to dr by dt, whereas this is equal to rf minus ri upon delta t, right? And then I had defined average acceleration, which is vf minus vi upon delta t. ठीक है, याद है इतना सबको? मैंने कोई क्वेश्चन का पार्ट छोड़ा तो नहीं था लास्ट क्लास में? उनको याद नहीं आ रहा. सारे पार्ट्स कर दिए थे ना. सर्कल में क्वेश्चन, सर्कल वाला क्वेश्चन था, if I remember. ओके, चलो. लास्ट के दो बाकी थे. कौन से दो पार्ट्स बताओ जल्दी. क्या निकालना था लास्ट के दो पार्ट्स में? Velocity and acceleration. If I remember correctly, we had यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v. हाँ भाई, हाँ, ये नहीं किया था ना अपन ने. कौन बोल रहा है सब कुछ कर लिया था? देखो ध्यान से. Please be very attentive what I'm going to do. So if I want to find average velocity is displacement over time. And displacement is a vector drawn from the initial position to the final position. So I think ये हमने किया था ना, we had discussed ये displacement का value क्या होएगा. सब लोग मुझे बोल रहे थे कि ये एंगल 90 minus theta होएगा. This angle is not 90 minus theta. Remember, if we take this as the y-axis, this as the x-axis, right? And if this angle is theta, then this angle would be 90 minus theta by 2. याद है कैसे आ रहा था? यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये कैसे आया. ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर भी होना चाहिए.
इसका मतलब कि ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होना चाहिए. This means that we had worked it out. Yeah. Displacement vector we had worked out in terms of I cap, J cap. And then we had to work out, I think, delta T, right? So what will be delta T for this journey? Well, delta T should simply be equal to distance traveled upon the speed of the particle, right? And distance traveled kitna hai? Distance traveled will be the length of the arc, right? No, not pi seconds. Pi seconds was when जब यहाँ इनिशियल पॉइंट था और डायमेट्रिकली ऑपोजिट फाइनल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे फाइनल पॉइंट नहीं है ना. फाइनल पॉइंट तो यहाँ है ना, जो थीटा एंगल पे है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? रिमेंबर, सी आर्यन, दैट इज अ ओल्ड डेफिनेशन, राइट. ये हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क की मैं बात कर रहा हूँ. देखो, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी आर थीटा. Okay. How did I नहीं, not 2 pi r by theta. ऐसा नहीं कर सकते हैं. 2 pi r by theta is meaningless. 2 pi r by 2 pi r by 2 pi into theta is meaningful. You can use the unitary method if you want. What I have used, I will tell you. I told you the superior definition of angle. Angle is equal to arc upon radius. Therefore, arc is equal to angle into radius. Angle is theta and radius is r. So the length of the arc is r theta. You can use unitary method. 2 pi r से आप निकाल सकते हो, same answer आएगा. Divided by the speed, which is v. So this is the time taken by the particle. So the average velocity of this particle will be equal to the displacement vector that we had figured out. Okay, the displacement vector that we had figured out, which would be something like, if I remember correctly, 2r sine theta by 2, राइट. ऐसे ही फिगर आउट किया था हमने. माइनस ये वाला एंगल है पाई बाई 90 माइनस थीटा बाई 2. सो माइनस साइन थीटा बाई 2 आई कैप प्लस कोसाइन थीटा बाई 2 जे कैप होल डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, आर की वैल्यू जो भी थी, you know the value of r, whole divided by r theta by v. So r and r will get cancelled out, right? And the average velocity vector will come out to be 2v by theta into minus sine square theta by 2 I cap, right, plus sine theta by 2 cosine theta by 2 j cap. This is the average velocity vector. Please notice that I have not swayed from the definition one bit. My only guide is the definition, nothing else. अगर definition में लिखा है displacement upon time, तो मेरे को और कुछ यूज ही नहीं करना है. टाइम मैंने अलग से निकाला, डिस्प्लेसमेंट मैंने वेक्टर मेथड से निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, and therefore I end up with whatever answer I am getting. To find the average acceleration, which is actually what I wanted you to find, to find the value of average acceleration, okay, please notice that this is the initial velocity, this is the final velocity,
this angle is given to me as theta. Magnitude of the final velocity is also v. I think it was 10. I think I gave 10. Please pay attention to what I'm going to do. If somebody gives me this diagram and somebody asks me, please tell me the average acceleration, I am going to first write down the definition of average acceleration, which I have learned, which is Vf minus Vi divided by delta t. Now delta t we have already worked out. It is equal to r theta upon v. So we really only have to work out Vf minus Vi. To work out Vf minus Vi, there are two distinct choices. The first choice is that I can use I cap, J cap, always preferable. But there is a second choice where I can use the graphical form of subtraction of vectors. If I choose I cap, J cap, then I never have to worry about the magnitudes and the direction, because I cap, J cap में अगर मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हैज बीन टेकन केयर ऑफ. अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में वेक्टर्स को लिख रहा हूं तो थोड़ा सा चिंता करने की बात है. ग्राफिकल फॉर्म इज जनरली प्रेफरेबल अगर आप केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, क्योंकि डायरेक्शन के लिए तो आपके पास एरो आ जाएगा, राइट? एंड यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि जेईई एग्जाम में आपको जो है एरो नहीं पूछने वाले हैं, एरो कहाँ आया. दे विल आस्क फॉर सम क्रेडिबल piece of information which tells me the direction. Okay, I'll show you both the methods. Right, first method where we are using I cap, J cap, this should be the preferable method, unless of course कोई आपको बोला अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो एवरेज एक्सेलरेशन का, तब आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं. So what I want to do is that I want to write Vf and Vi in terms of I cap and J cap, and I see immediately that Vi is equal to Vj cap. Right? As usual, I have chosen this direction to be I cap and this direction to be J cap. But what is Vf? Right? We have to figure out Vf. So to figure out Vf, what I do is that I draw a replica of this V here. ये वाला जो V है, इसका मैंने यहाँ पे रेप्लिका बनाया. और अब मैं एंगल बताना चाहता हूँ भाई ये एंगल क्या है. आई कैप जे कैप का एंगल किधर है, थीटा एंगल कहाँ है, या थीटा बाई 2 कहाँ है, या जो भी है वो. मेरे को ये मालूम है कि ये जो रेड वेलोसिटी वेक्टर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल. राइट, टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड वेक्टर मैंने बनाया है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मैंने बनाया है, वो इस सर्कल का टेंजेंट है. Right, and I hope all of you remember what is the angle between the radius of a circle and the tangent to the circle at that point. Right, ये सब basic geometrical ideas हैं जो आपको आने चाहिए. So the angle between the red vector and the green line is 90 degrees. अब अगर मैं यहाँ पे एक horizontal line ऐसे draw कर दूं, तो ये एंगल होना चाहिए थीटा. राइट, इसको आई थिंक बोलते हैं ऑल्टरनेट या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ तो बोलते हैं. तो ये थीटा एंगल हो गया. और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ये रेड वेक्टर ने थीटा एंगल बनाया है, सॉरी
ग्रीन लाइन ने अगर थीटा एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो एंगल होना चाहिए, दिस शुड बी 90 माइनस थीटा, राइट? सो दिस मीन्स, वो भी नाम होता है, हाँ, दिस मीन्स दैट दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग मी. कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक ज्योमेट्री के आइडियाज हैं जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़े हैं. एनीबडी नॉट अंडरस्टैंडिंग? एनीबडी फॉरगॉटन? क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल? सर्कल का टेंजेंट सर्कल के रेडियस से 90 डिग्री बनाता है. याद है ना ये सबको? तो अगर ये एंगल 9, हाँ भाई सॉरी, देखो भाई, अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? बताओ भाई सरीश. पक्का 90 माइनस थीटा होएगा? आया समझ में ना कैसे आ रहा है वहां 90 माइनस थीटा? So what is VF then? What is VF then? एक भाई मनीष क्या टाइप कर रहा है? मतलब कुछ बुरा मान गया है क्या? बुरा तो नहीं मान गया ना? VF will be equal to minus V cosine 90 minus theta sin theta plus V cosine theta. ठीक है, अभी आ गया, मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. VF माइनस VI दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय टाइम करो, जो भी आएगा दैट इज द एवरेज एक्सीलरेशन. Is this understood by everyone? Is this clear to everyone? So just to confirm, oh हाँ method 2, sorry, हाँ yes, method 2. Method 2, please see method 2. So this is going to use the graphical, this is going to use the graphical form of vectors, right? So I want to subtract these two vectors, right? Why do I want to subtract? Because this is the initial vector, initial velocity vector, and this is the final velocity vector. And I'm interested in
A average A is equal to VF minus VI by delta T, right? This is what I'm interested in. So I want to figure out the numerator. Denominator I've already figured out. Delta T is equal to R theta by V. तो न्यूमरेटर फिगर आउट करने के लिए मुझे ये दो वेक्टर्स सबट्रैक्ट करने हैं और ग्राफिकली अगर दो वेक्टर्स पे कोई भी ऑपरेशन कैरी आउट करना है तो दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट से ड्रॉ करना होता है. They have to be drawn together. Therefore, I am going to use the concept of parallel transport of vectors, and I'm going to draw a replica of the initial velocity vector here, and I'm going to draw a replica of the final velocity vector here. Both these vectors have a magnitude of v, and the angle between these two vectors is theta. The angle between these two vectors is theta because this is 90 degrees, this is 90 degrees. Therefore, the angle between the two red vectors must be theta. So if I want to find Vf minus Vi, then I must draw a vector from the head of the initial vector to the head of the final vector. And if I do that, I'm going to get something like this. What is the length of the green vector? No, this is not the displacement vector. No. क्या क्या बोल रहा है श्रीकांत यार, कहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया? ये वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस है. दिस इज Vf minus Vi. This is delta V. Vf minus Vi. दो वेलोसिटी वेक्टर्स का डिफरेंस है ये, राइट? इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा? डेल्टा V का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है. अगर एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो थर्ड साइड का लेंथ क्या होने वाला है? इट विल बी इक्वल टू, नहीं भाई शिवेन, हाँ, इट विल बी इक्वल टू 2v sin थीटा बाई 2. लोग फॉलो कर रहे हैं ये? श्रीकांत फॉलो कर रहा है? आया ट्रैक पे कि नहीं आया? कि अभी भी तेरे को लग रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना रहा हूं? श्रीकांत, श्रीकांत. ओके, और बाकी लोग भाई समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ या ऊपर से जा रहा है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है? यू हैव टू टेल मी. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ओके, ठीक है. नहीं, कोसाइन फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत है. लगा सकता है, सेम आंसर आएगा. एंगल थीटा क्यों नहीं होएगा? जब ये पंखे को घुमाया तो पंखे पे अगर एक पेन रखा हुआ है तो पेन भी तो उतने ही एंगल से घूमेगा. उनके बीच का एंगल तो थीटा ही होने वाला है. So the magnitude of average velocity, the magnitude of average velocity will be equal to 2v sin theta by 2 upon r theta by v. That is 2v square sin theta by 2 upon r theta. और जो लास्ट आंसर निकाला है आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर यही आएगा. ठीक है? ठीक है भाई, ये मेथड 2 है.
हाँ पूछो भाई दर्श। अनम्यूट करो या ऐसे ही पूछ लेगा? अब मैं नहीं बताऊंगा रजत, मैं नहीं बताऊंगा। 10 बार बता चुका हूं मैं, और 15वें बार भी फिर से तू पूछेगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है, और वो यहाँ पे 90 डिग्री पे लैंड करता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन थीटा बाई 2 का डेफिनेशन लगाऊंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर hypotenuse, opposite side is unknown, therefore I will write it as x. Hypotenuse is equal to v, so this means that x is equal to v sin theta by 2. If this is equal to v sin theta by 2, then the whole length will be equal to 2v sin theta by 2. रजत भाई समझ में आया? रजत समझ में आया? अगली बार फिर से पूछना, फिर पूछेगा। हाँ, डायरेक्शन विल बी, हम डायरेक्शन बता नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा डायग्राम ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो ग्रीन एरो मैंने बनाया है, इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या है आई डोंट नो, right? I mean, I can only, that's why I said, na, if you are interested in magnitude of the average acceleration of this thing vf minus vi, then there is no problem. But if you are interested in the direction, then there is a problem, right? Because I cannot draw this very accurately. Roughly I can say that the direction is like this. But exact direction तो तभी आएगा जब हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे और आई कैप जे कैप में आंसर आने वाला है, राइट? ये एग्जैक्ट डायरेक्शन बता रहा है एक्सेलरेशन का, एवरेज। एक मिनट। हाँ बोल। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए ना। नेक्स्ट स्लाइड मतलब कौन सी है? सर इसके जस्ट पहले अभी जो लिखी थी, जो जिसमें वो जस्ट पहले ये वाली, मेथड 2। ये वाला? सर मेथड 2 वाली स्लाइड। अच्छा, सर इसमें अगर मतलब अगर आप उसी सर्कल में देखिए, मतलब हमने मतलब क्या कहते हैं, हमने सर पॉइंट्स नेम नहीं है एक बार, मतलब क्या? सर हमने वो रेफरेंस क्या लिया हुआ है इसमें अभी एज ऑफ नाउ? हाँ, क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, नहीं फ्रेम समझ। ऑफ रेफरेंस का हमारा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है मेरे को। Instantaneous velocity vector is tangential to the path of the particle. मैंने रेड से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स बना दिए हैं मैंने। अब मेरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है। सर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। हाँ, सर तो फिर अगर आप उसके परपेंडिकुलर एक और बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लाई करेगा ना? अच्छा वैसे पूछ रहा है क्या? तो मेरा स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड ये जे कैप है और ये आई कैप। हाँ सर, तो फिर हम डायरेक्शन निकाल तो सकते हैं इसमें, हमें बस इस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है। किसके बीच का, किसके बीच का? रिजल्टेंट वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में हाँ एंगल हाँ हाँ निकालना है हाँ हमें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर अगर उतना मेहनत किया तो बिल्कुल निकल जाएगा डायरेक्शन। लेकिन मैं केवल ग्राफिकल वे में अगर निकालूं, मतलब ये दो एरो बना दूं, तो निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उतनी मेहनत करने को तैयार है कि एक्स एक्सिस से उसका एंगल निकालेगा तो बिल्कुल निकल जाएगा यार। सर इजी आ रहा है, मतलब वो कॉर्नर वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें एक एंगल। केस में इजी आ रहा है ना, बट हर केस में इजी नहीं आएगा। सपोजिंग मैंने दिया होता कि ये पार्टिकल सर्कल में यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना? यस सर। उस केस में इजी नहीं आ रहा। इस केस में आ रहा है क्योंकि एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है ना,
अच्छा ओके सर। चलो, सो आई वांट टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन, प्लीज इसको जल्दी से करना है, नहीं तो ये क्लास भी इसी में चली जाएगी. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स नाउ. प्लीज रिमेंबर टू अप्लाई ओनली द डेफिनेशन. अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या चीजें पूछ रहे हैं, डेफिनेशन में क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो चीजें मैं कैसे इसमें आंसर में फिट कर सकता. So a particle is moving. Particle moves along y is equal to 3x square. So this is the y-axis, x-axis. Particle is moving along this 3x square from origin with constant speed 2 meters per second. Find average acceleration when x is equal to 3 meters. And मेरे को डायरेक्शन के साथ चाहिए ना अपना आंसर.
नहीं भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ी ना है, पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है मैंने दिखा दिया, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन 16/t। अच्छा सॉरी, मैं टी बता दे रहा हूँ, टी बता दे रहा हूँ। हाँ भाई, क्या दिया है इसमें? इसमें टेक टी एज हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, यस। नहीं, नहीं भाई, टू नहीं है आंसर, देखो। So when x is equal to 3, I'm telling you that t is equal to 9, although that's not necessarily true. I do not want to figure out what the time will be. So here, this is the final velocity vector. This is the initial velocity vector, right? And since the graph is y is equal to 3x square, therefore this value of y must be 27. Now,
average acceleration which we want to find is defined as the final velocity vector minus the initial velocity vector divided by time. Right? Now, time is given to us as 9 seconds. So all we need to do is figure out what is Vf minus Vi. Now, Vi is very, very simple. Vi is equal to 2i cap. Right? And I think that is where you are getting the most, when people are getting the answer as 2, to yahan se aa gaya. But what is Vf? That is what I really, so the question is really asking you to find Vf. Can you figure out Vf? मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में क्या बोला? मैंने बोला कि आपको डेफिनेशन यूज करना है और उस डेफिनेशन में जो टर्म्स हैं वो फिगर आउट करने हैं. तो जब मैंने एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखा तो उसमें 3 टर्म आ रहे हैं, Vf, Vi और डेल्टा टी. डेल्टा टी इज गिवन टू अस एज 9. Vi is equal to 2i cap. हाँ, 2i cap कैसे? चलो अच्छा, ये भी आंसर में करता हूँ. And we have to figure out Vf, right? Now how can I? हाँ, very good अभिजीत. हाँ, ऐसे ही कुछ आएगा आंसर. So how can I figure out? How can I figure out Vi 2i cap है? How can I say कि नहीं नहीं ये तो यही होएगा, ये तो यही होएगा, right? The way or the reason why I am so confident that initial velocity will be 2i cap is because of the fact that the instantaneous velocity is tangential to the curve. Instantaneous velocity is always tangential to the path of the particle. And how do you find the tangent to a curve? You differentiate, right? So if I differentiate, I will get dy by dx, which remember is the slope of the curve, which remember is the tan of the angle made by the straight line with the positive x-axis, is equal to 6x. So when I put in the value of x, I am going to get the value of tan theta. So if I put in the value of x as 0 at x is equal to 0, what is the value of dy by dx? What is the value of the slope of the graph? 0, right? That means that at time t is equal to 0, when the particle is at the origin, the velocity vector of the particle must be along the x-axis. अभी आया समझ में? तो लिखा हार्दिक, समझ में आया कि क्यों है, मैंने क्यों बिना सोचे समझे 2i कैप लिख दिया था? क्योंकि वहां पे 3x स्क्वायर था, डिफरेंशिएट करने पे 6x आएगा, x को 0 डालेंगे तो इस कर्व की स्लोप मिलेगी एट x इक्वल टू 0, विच कम्स आउट टू बी क्या 2? क्या 2 भैया? अबे वही तो बता रहा हूं तेरे को, तो सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने अभी तक? मैग्नीट्यूड नहीं दिया क्या? ये क्या है ये? हाँ देख, अभी आया समझ में 2 क्यों आया? तो लिखा 2i कैप क्यों आया? समझ में आया? कहाँ गई तू लिखा?
अब can you now tell me what is VF? Can you now tell me what is VF? All information is now in front of you. All information is now in front of you. ओफ भाई मनोज थोड़ा मतलब थोड़ा बढ़िया से लिख देता है यार. शौनक की आंसर नहीं हो सकता है ना, मतलब आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. बहुत लंबा है, कोई लंबा नहीं है. देखो, आई एम चेंजिंग द स्लाइड फॉर अ मोमेंट. हाँ अभिजीत, मैं बता चुका हूँ, सही कर चुका है. y is equal to 3x square. So dy by dx is equal to 6x. This means that tan theta is equal to 6x. At x equal to 3, tan theta is equal to 18. We have a right angle triangle where this length is 2, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर ही मैंने बना दिया, और ये एंगल थीटा है. tan थीटा इज इक्वल टू 18 है. तो इसको ऑपोजिट बेस, ऑपोजिट ओवर बेस is equal to 18, right? Opposite square plus base square, या यहाँ पे 2 लगने की जरूरत भी नहीं, छोड़ो इसको. अगर tan theta 18 है, which is equal to opposite over base, so I can always say that this side is 18 and this side is 1. Tan theta 18 आ जाएगा. If this side is 18, this side is 1, तो hypotenuse कितना हो जाएगा? Root 18 square minus 1. Root 18 square minus 1 कितना होता है? Root 18 square minus 1, 5 root 13 plus 1, sorry. Root 18 square plus 1. Plus 1 ही क्या बताया ना आर्यन? 5 root 13. इसने बताया मेरे को. हाँ. So 5 root 13 आ रहा है. Root 325 क्या चीज है? अच्छा, इसमें रूट 325 आता है क्या? 18 स्क्वायर प्लस 1 रूट 325 आता है ऐसा? हाँ ऐसे तो होएगा. राइट, सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना इसको? ये मैंने क्या किया, ये मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, ये dy बाई dx निकाला. dy बाई dx स्लोप होता है मेरे को मालूम है. इसमें x की वैल्यू 3 रखी, स्लोप की वैल्यू 18 आई, और स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज द tan ऑफ द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस. ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन हो गया. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो tan theta should be equal to 18. That means the opposite side should be 18, base should be 1, or you can take any other combination. Therefore, the hypotenuse should be 5 root 13,
this means that VF, which will be equal to V cosine, which will be equal to V cosine theta I cap plus V sine theta j cap. This will be equal to 2 into cosine theta. What is cosine theta? Go back to this diagram. What is cosine theta? 1 upon 5 root 13. So this becomes 2 into 1 upon, sorry, 2 divided by 5 root 13 I cap plus sine theta, which is 2 into 18, which is 36 divided by 5 root 3 j cap meters per second. तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसको यहां रखना है। हाँ हाँ हाँ, ये लो, फाइव रूट 13 और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहाँ आ गया और टाइम की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, please notice that whenever I will make a question tough, the toughness will not lie in the fact that I will be changing the definition of a physical quantity. The toughness will always lie in finding out one term or maybe two terms of the definition that we have used. अगर ये वेलोसिटी वेक्टर को मैं कंपोनेंट्स में लिखना चाहता हूं तो ये जो कंपोनेंट्स आएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट v cos थीटा आएगा, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा आएगा, राइट? ये क्लियर है ना तरीका? ये v cos थीटा v sin थीटा आएगा इसके कंपोनेंट्स। Yes. Now, theta is what? ये theta क्या है? Theta is the angle between the velocity vector and the horizontal. और जो instantaneous velocity vector होता है, that is always tangential to the path of the particle. This means that the velocity vector, the red vector that I have drawn, is tangential to the green curve. And the slope of the tangent is also given by dy by dx. The value of dy by dx for this particular curve is 6x. And at this point, x is equal to 3. Therefore, the slope must be 18. And if the slope is 18, that means tan theta must be 18. And if tan theta is 18, then cos theta must be 2 over 5 root 13 and sin theta must be 18 over 5 root 13. अब डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करना है? पार्थ, differentiation is to be used whenever you have to find the slope, rate of change, जहां भी निकालना है। 18 और 36 क्या बोल रहा है? 18 और 36, अबे वहां पे 2 है ना यार श्रीकांत, बिल मेरे को, बिल लॉकडाउन खत्म होने दे, मैं आता हूँ तेरे पास। यहाँ पे 2 भी तो है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया 18 को। v sin थीटा है, v का वैल्यू 2, sin थीटा का वैल्यू 18 by 5 root 13। 2 into 18 कितना होता है श्रीकांत?
2 into 18, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा 36 बोला। एक मिनट। हाँ भाई हार्दिक बोलो। सर मैग्नीट्यूड तो 5/√30 है ना वीएफ का। क्या आवाज आ रही है तेरी, बढ़िया। वाह, इसी में अगर तू गाना गा देगा तो मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है, फिर से बोल। सर वीएफ का मैग्नीट्यूड 5/√13 होगा ना। मेरे भाई क्या हो गया है यार तुम लोग को, ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये जो मैं लाल गोला बना रहा हूँ दिखाई दे रहा है तेरे को? कौन सा? अच्छा 2 मीटर। हाँ उसका सही बोल रहा है। आया समझ में? ₹5/√13 कैसे आ गया? वो भी तो वी है। क्या? वो 5/√13 भी तो हाइपोटेन्यूज ही है ना वी। हाँ ये वाला सर। अरे वो कोई और राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, वो तो आर्बिट्ररी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 18। तो ये साइड 18 हो गया, ये साइड 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 5/13 हो ठीक है। गया। सारे बनाइए इसको, भूल जाए इसको, इससे कोई मतलब नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन सा नंबर वाला डेफिनेशन है? 8 नंबर है कि 9 नंबर? एवरेज एक्सेलरेशन वाज 8th ना? ये सब 9 और 10 अलग अलग कैसे हो सकता है भाई? 9 और 10 मालूम नहीं मेरे को। एक्सेलरेशन और I will call it instantaneous acceleration, but I'll just end up calling it acceleration. Right. So I just want to draw the diagram that I've been drawing for so long. If this is the path of a particle, then this is the position vector of the particle at time t, and this is the velocity vector of the particle at time t. ब्रैकेट में t जो मैंने लिखा है इसका मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था। And if this is the position vector of the particle at time t plus dt, this is the velocity vector of the particle. This is the velocity vector of the particle at time t plus dt. Right? Acceleration is defined as the velocity vector at time t plus dt minus the velocity vector at time t divided by the difference dt. Right? And we have seen this before. This is nothing but the definition of differentiation. So acceleration or instantaneous acceleration is defined as dv by dt. Right? Instantaneous acceleration is defined as dv by dt. And this is the last definition that we'll be talking about. जितने भी हमने डेफिनेशन बात किए 9 या 10, अब हम सबको यूज करेंगे
Before we begin our usage, a word of warning, because अभी हम क्या होएगा कि अभी हम one dimensional motion में shift कर जाएंगे. So because we'll be shifting to one dimensional motion for a couple of classes or 3 classes, I will not be talking about components. I will be not be talking about tangents, right? तो कभी-कभी हम लोग भूल जाते हैं. But word of warning, word of caution that this acceleration vector that I have just defined, please never try to decide the direction of this acceleration vector. अगर velocity vector as a function of time आपको given है और आपने उसको differentiate किया, I cap j cap में कोई तो vector आया, उस वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए आपने वेक्टर मैथमेटिक्स का हेल्प लिया. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का डायरेक्शन होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता है. अगर आपने इस चीज का हेल्प लेके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर. लेकिन अगर आप एक पार्टिकल का मोशन देख के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल रहे हो, केवल देख के, अच्छा ये यहां था अब यहां आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम इट विल गिव यू एन आंसर विच विल बी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्टली, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा बिटवीन दी क्या एक और बार बोलिए. मैं बोल रहा हूं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आप प्लीज प्रिडिक्ट मत करिएगा. इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. सो देयर इज ए डेफिनेट हायरार्की ऑफ, आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं, देयर इज ए डेफिनेट हायरार्की ऑफ physical quantities. On the top is a physical quantity which we have not discussed, but you already have learned about it, have learned something about it. Force, right? I'm going to be more specific. I'm going to talk about the external force, right? Now, अभी मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि मेरा एक्सटर्नल से मतलब क्या है, बस ये आपको इतना अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि कुछ बाहर का फोर्स, मतलब जो पार्टिकल अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ नहीं, उसके बाहर दूसरा पार्टिकल फोर्स लगा है. सो एक्सटर्नल फोर्स विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. Acceleration will then decide the change in velocity, and velocity will then decide the change in position. हम लोग जनरली उल्टा लेके चलते हैं. हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि अच्छा पोजीशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी डिफाइंड हो गई, वेलोसिटी डिफाइंड हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन डिफाइन हो गया. ये काइनेमैटिक्स में एक हद तक ऐसे करते हैं, लेकिन इन रियलिटी दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर एक बॉल कहीं पे रखी हुई है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द बॉल विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल इंफिनिटी. उसको मूव नहीं करना है वहां से. ओनली व्हेन यू किक द बॉल विल द बॉल मूव. And the moment you have kicked the ball, an external force has acted on it, and therefore this force has caused an acceleration.
So the direction of the acceleration is dependent on the direction of the external force that is experienced by the ball. This acceleration will change the velocity of the ball from zero to a non-zero quantity. Okay. When the velocity of the ball becomes a non-zero quantity, then this velocity will change the position of the ball from zero to a non-zero quantity, and therefore you will see the ball changing its position after you have kicked it, right? So the kick causes the change in position, but not directly, never directly. The kick simply causes an acceleration. Acceleration causes a change in velocity, and velocity causes a change in position, right? This is the hierarchy. This is what you must remember. अभी रुक जाना भाई. Okay, so if this is the acceleration, what I want you to do, एक मिनट रुकना बजा तभी कर रहा हूँ. तुम लोग का ग्रुप कभी नहीं मिलता यार. हाँ है यार. एक मिनट, एक मिनट. So I want you to do in the lecture 2 वाला जो अपना वो है ना, lecture 2, lecture 2 में अपने को करना है एग्जाम्पल नंबर 4. कुछ लोग पहले से आई थिंक क्वेश्चन कर चुके हैं स्टिल. हाँ भाई रजत. इस वाले फॉर्मूले में dv अपॉन dt कैसे आएगा? vt तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो v dt अपॉन dt आना चाहिए ना. क्या कैंसिल हो जाएगा? vt और vt तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर तो v dt अपॉन dt होना चाहिए ना. जैसे sin 45 plus sin 45 is equal to sin 45 plus 45 is equal to sin 90 is equal to 1. ऐसे ना? सही किया मैंने? नहीं नहीं, सही तो नहीं है सर ये. हाँ, सही तो नहीं है सर ये. क्यों? साइन कॉमन ले लिया ना मैंने. हाँ सर, फिर हो सकता है. हो सकता है ना? हाँ सर. और ये देख, साइन अपॉन कॉस, ये कर सकते हैं. एस और एस कैंसिल कर दिया. नहीं, ये नहीं कर सकते. बाई को. नहीं सर, ये नहीं कर सकते. क्यों? एस और एस तो कैंसिल किया है ना. नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता. फिर भी नहीं हो सकता, ये तो बताएगा. ये क्या मतलब हुआ? सर वो पूरा एक फंक्शन है सर, ऐसे स्पेलिंग वाइज थोड़ी उड़ा सकते हैं. अच्छा, स्पेलिंग वाइज नहीं उड़ा सकते? नहीं तो यहाँ पे तो स्पेलिंग वाइज मैंने कॉमन ले लिया, साइन और साइन. सर, अभी कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा. कंफ्यूज हो रहा है क्या?
कंफ्यूज क्यों हो रहा है? तूने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, यही किया ना? हाँ मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि ये v मल्टीप्लाइड बाई t नहीं है ना, ये कुछ और ही है ना। v इज ए ओके फंक्शन ऑफ t है ना। ओके, समझ गया सर। हाँ, तो अपन ये काम नहीं कर सकते ना कि ब्रैकेट खोल के और फिर ये तो हाँ इन बाई को हो गया ना फिर तो। सर, तो फिर इसको हमने बाद में किया क्या, जिससे हमारा ये फॉर्मूला आया a इक्वल्स टू dv अपॉन क्या dt? क्या बोल रहा है तू? dy बाई dx की क्या डेफिनेशन होती है? अच्छा, हमने डिफरेंशिएट किया इसको। dy बाई dx की डेफिनेशन तो बता। f ऑफ कौन? x प्लस dx माइनस f ऑफ x अपॉन dx, यही तो था डेफिनेशन। हाँ सर। अच्छा, उससे उसमें ओके। इफेक्ट कैंसिल कर दिया था क्या? नहीं। तो फिर वही काम ऊपर भी हो रहा है। ठीक है। हाँ सर, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ, नहीं जो है गलत आंसर है। गलत आंसर आ रहे हैं, गलत आंसर महक। एग्जाम्पल भाई, जो लेक्चर में क्वेश्चन है, 4 एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4। हाँ शिवेंद्र, तेरे को पहले से मालूम था इसलिए बोल रहा है। हाँ 56 गलत आंसर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहा क्या बता रहा है ये? गलत आंसर है आदित्य, 150 गलत। फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। 15 मीटर्स नहीं भाई, मीटर कैसे आएगा? हाँ हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ शिवेंद्र, तेरे को पहले से मालूम है। नहीं 81 गलत आंसर है। 81 आया कैसे अभिजीत? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है यार, तुमने क्या किया उसमें? नहीं अद्वैत, गलत आंसर है। नो, 56 50 150 दीज आर ऑल गलत आंसर। क्योंकि गलत है भाई राधिका। क्या निकालना है उसमें ये देखो ना, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू डोंट हैव